ہم دل سے ہارے ہیں۔ از قلم سمیرہ شریف طور، کیس نمبر 4۔ مہوش اور قیوم دونوں نے کن سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر عشاء کو۔ وہ اب بھی قالین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رو رہی تھی۔ عشاء، مہوش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مزید بلکی۔ اب بس بھی کرو، بہت رو لیا تم نے، قیوم بھی پچکارا، مگر اس کے آنسو تھے کہ تھمنے میں ہی نہیں آ رہے تھے، بلکہ مزید شدت آ گئی تھی۔ بے بسی کا احساس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب کی بار تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، رہی سہی انا، عزت نفس سب کچھ لٹا چکی تھی، کچھ بھی تو باقی نہیں رہا تھا۔ روتی نہ تو پھر کیا کرتی؟ دیکھنا ہم شہباز بھائی کا کیا حشر کرتے ہیں۔ بڑا رو لیا تم نے، ساری کسر نکالیں گے ہم ان کی، فکر کیوں کرتی ہو؟ جب دل کا سارا بوجھ ہلکا کیا ہے تو اعتماد بھی کرو۔ شہباز بھائی اب ہمارا مسئلہ ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ مہوش چچی نے اسے بہلایا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ نہیں مانیں گے، وہ مجھ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ان کے تو بڑے بھی مانیں گے، دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ مہوش نے چٹکی بجائی تھی۔ ان کے اعتماد پر عشاء کو کچھ حوصلہ ہوا۔ چلو اب جاؤ، جا کر آرام سے سو جاؤ، کل میں دیکھوں گی کہ کیا کرنا ہے، تم فکر نہیں کرو، سب نارمل ہو جائے گا۔ ان کے اس تعاون پر اس کا دل پرسکون ہوا۔ ان کے کمرے سے نکل کر وہ نیچے چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی تو گزشتہ لمحے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ شہباز حیدر کے کمرے سے نکالنے کے بعد وہ جب بھی دروازہ پیٹتے رو رہی تھی تو عقب سے قیوم چچا نے آواز دی تھی۔ وہ تو انہیں سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ چاچو کہہ کر وہ ان کے کندھے سے لپٹ کر دھواں دار روئی تھی۔ وہ تو اس نئی افتاد پر بوکھلا گئے تھے۔ خاموشی سے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ مہوش کو جگا کر صورتحال بتائی۔ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی سدھ بت کھو رہی تھی، تھوڑا سا محبت سے پچکارنے کی دیر تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سب بتاتی گئی۔ دونوں کئی لمحے بے یقین رہے، پھر مہوش نے ہی خود کو سنبھالا تھا۔ ارے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، عشاء سے بڑھ کر فوزان کے لیے بھلا کوئی اور ماں ہو سکتی ہے؟ ہم بھی ادھر ادھر رشتے دیکھ رہے تھے، کتنے پاگل ہیں۔ عشاء کے لیے شہباز کا خیال ہی نہیں آیا۔ بھائی صاحب نے بھی کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہی ہے نا، ابھی انکار کر رہے ہیں، بعد میں خود ضرورت محسوس کریں گے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ تم فکر نہیں کرو عشاء، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ فوراً پرجوش ہو گئی تھی اور پھر مسلسل تسلیاں دلاسے دیتی رہی تھی۔ اب وہ کچھ پرسکون تھی۔ اسے یقین تھا کہ مہوش چچی نے وعدہ کیا ہے تو وہ سب حالات کو سنبھال لیں گی۔ اطمینان سے آنکھیں بند کی تو کچھ ہی دیر بعد نیند سے اس کی پلکیں بوجھل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اگلے دن مہوش بھابھی نے کالج سے چھٹی کی تھی۔ عشاء کے یونیورسٹی جانے کے بعد شہباز حیدر نیچے اترے تھے۔ مہوش نے بغور دیکھا، نارمل انداز میں ناشتے سے انصاف کرتے گزری رات کے کسی بھی واقعے کا عکس ان کے چہرے سے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ عشاء نے جو بتایا تھا، ان کا خیال تھا کہ شہباز تائی امی سے ضرور رشتے کے متعلق ذکر چھیڑیں گے، مگر خیریت رہی۔ شہباز کے چلے جانے کے بعد تائی امی چچی دونوں ناشتہ کر رہی تھی۔ مہوش بھی اپنا ناشتہ لے کر ان کے پاس ٹیبل پر آ بیٹھی۔ یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں کے دوران انہوں نے وہ بات شروع کر دی، امی میں سوچ رہی ہوں کہ اب شہباز بھائی کی بھی شادی کر دینی چاہیے، جوگ لینے کو اتنا عرصہ بہت ہوتا ہے، فوزان کو تو عشاء نے سنبھال رکھا ہے، وہ اب بڑا ہو رہا ہے، شہباز بھائی کو بھی کچھ عرصہ بعد بیوی کی ضرورت محسوس ہوگی، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم ابھی سے سوچیں۔ مہوش نے بڑے سلیقے سے بات کی تھی۔ دونوں خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر شہباز نہیں مانتا۔ امی نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں مانتے؟ ابھی تو ایک عمر پڑی ہے ان کی، یوں بغیر گھر والی کے زندگی گزرنے سے تو رہی۔ مہوش نے کچھ تیزی سے کہا، آپ تو ماں ہیں، پیار سے سختی سے راضی کریں، وریشا کی زندگی اتنی ہی تھی، فوزان کو ہم سب سنبھالنے والے ہیں، خاص طور پر عشاء، کل کو اس کی شادی کر دیں گے، پھر بھی تو فوزان تنہا ہوگا ہی نا۔ شہباز بھائی کو بھی اب عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہاں بہو صحیح کہتی ہے، تم ہی کچھ زور دو، میں کئی بار کہہ چکی ہوں۔ تائی امی نے بھی مہوش کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کئی بار اس موضوع پر بات کر چکی ہوں، مگر ہر بار کہہ دیتا ہے کہ مجھے بیوی اور آپ کو بہو تو مل جائے گی، اگر آنے والی نے فوزان کو قبول نہ کیا تو۔ عفیفہ بھابھی کو بھی ہم لوگ لائے تھے، انہوں نے عشاء کو کب اپنایا؟ میں اپنے بیٹے کو ساری عمر کسی محرومی میں نہیں رکھنا چاہتا، امی نے دکھی لہجے میں بتایا تو مہوش نے ایک گہری سانس لی۔
हाँ ये भी सच है, फुजान को ईशा ने जिस तरह पाला है शायद वरीशा भी ना पालती। उन्होंने जानबूझकर ईशा का जिक्र कर दिया था। हाँ अल्लाह अजर दे उस बच्ची को, जब उसकी शादी कर देंगे तो बड़ा मसला होगा। फुजान तो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। उसने भी उसके लाड उठाकर जिद्दी बना डाला है उसे। सिर्फ वही उसे संभाल सकती है। मैं सोचती हूँ जब वो चली गई तो हम कैसे संभालेंगे। अम्मी को अब नई फिक्र सताई थी। अम्मी, मेरे जहन में जब से ईशा के रिश्ते का चक्कर चला है एक ख्याल आ रहा है, अगर बुरा ना लगे तो। वो रुक गई। दोनों खवातीन ने देखा। क्यों ना हम शहबाज भाई और ईशा की। वो जानबूझकर बात अधूरी छोड़ चुकी थी। दोनों खवातीन बेहद हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी और फिर महविश को जो कह रही थी। छोटा मुंह मगर बड़ी बात वाली बात है, लेकिन ये भी सच है जिस तरह फुजान ईशा के साथ अटैच है, अगर ईशा हमेशा के लिए शहबाज भाई की ज़िंदगी में आ जाए तो सौतेली के डर से शहबाज भाई शादी करने पर आमादा नहीं होते। वो भी कर लेंगे। फिर हमने बाहर भी तो उसकी कहीं ना कहीं शादी करनी ही है ना, और शहबाज भाई की भी। तो दोनों की एक दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकती। महविश ने जो कहना था वो कह दिया था। है तो बात ठीक, मगर ताई अम्मी रुक गई। लोग क्या कहेंगे कि दोनों में 13-14 साल का फर्क है। फिर वो रिश्ता भी नाजुक सा है, लोग बातें ना बना ले। अम्मी को भी महविश की बात भाई थी, मगर खदशे बोल उठे। रिश्ते में दोनों चचा भतीजी लगते हैं, सगे तो नहीं है ना। फिर हजरत अली और हजरत फातिमा का भी यही रिश्ता था। रह गई बात उम्र की, तो इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। आप बाहर से भी कोई लड़की लाएंगी तो उसकी भी उम्र इतनी ही होगी या 1-2 साल ज़्यादा होगी। लोगों की तो बात ही ना करें। ईशा की माँ के बाद या वरीशा के बाद दोनों को लोगों ने तो नहीं संभाला था। घर की बात है, जब घर वाले राजी तो क्या करेंगे लोग। उसने आराम से कहा था। दोनों खवातीन के दिल को बात लगी थी। महविश ठीक कह रही है आपा, आप बताइए आप क्या कहती हैं। अम्मी ने ताई अम्मी को देखा तो वो हंस दी। मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है। शहबाज और ईशा अपने बच्चे हैं, अपने घर में आंखों के सामने रहेंगे। वरीशा के बाद अब ईशा। हैरत है, मुझे ये पहले ख्याल क्यों नहीं आया। वो खुश होकर कह रही थी। फिर आप भाई साहब और वाजिद से बात करें, मैं शहबाज और उसके अब्बा से बात करती हूँ। घर की बात है, कोई मसला नहीं होगा। महविश ने जो जिम्मेदारी ली थी वो बाएहसन निभाई थी। अब जो करना था उन खवातीन ने करना था। वो मुस्कुराते हुए खाली बर्तन उठाकर उठ खड़ी हुई। ये बात जब अब्दुल्ला साहिब के कानों तक पहुंची तो उनको ये मशवरा बहुत पसंद आया। उसी शाम उन्होंने वाजिद को बुलाकर बात की तो वो कितनी देर तक चुप रहे। फिर कहने लगे, अम्मा जी वैसे तो सब ठीक है, मगर ईशा और शहबाज की उम्र में बड़ा फ़र्क है। शहबाज एक बच्चे का बाप है, न जाने ईशा राज़ी भी हो कि नहीं। वो मुतज़ब्ज़ब हुए। उम्र की कोई बात नहीं, बाहर भी करेंगे तो पता नहीं कोई कितनी उम्र वाला शख्स हो। रह गई ईशा की बात तो उसे मैं खुद ही पूछ लूँगी, तुम अपनी मर्जी बताओ। माँ की बात पर वो मुस्कुरा दिए। हर्ज तो कोई नहीं है, ईशा की रजामंदी ले ले, जो जी चाहे करे। शहबाज से बढ़कर हमें और क्या चाहिए। ठीक है, फिर मैं ईशा से पूछकर रजामंदी दे देती हूँ, आगे बच्चों की किस्मत। उन्होंने खुश होकर कहा। ताई अम्मी ने ईशा से पूछने की जिम्मेदारी महविश की जुम्मा लगाई थी। महविश हंस दी। शाम के खाने की तैयारी के दौरान महविश ने ईशा को अपने सारे दिन की कारकर्दगी बताई तो कितनी देर तक वो हक्का बक्का रह गई। क्या वाकई ये सच है? वो बेयकीन थी। महविश ने उसके रुखसार पर चुटकी भरी तो वो झेप गई। इतनी जल्दी कैसे हो गया ये सब? खुशी ही ऐसी थी कि वो सुर्ख गुलनार हो गई। बस दुआ दो हमें, कहा था ना कि हम पर छोड़ दो। बस मैंने ताई अम्मी और अम्मी को राम ही ऐसे किया कि खुद ब खुद उन्होंने सारा मामला तय कर लिया। अब बात बड़ों में है, वो मज़े से बता रही थी। वो अभी भी बेयकीन थी। और शहबाज, उसने कहा, आज रात अम्मी ने उनसे बात करने का इरादा किया है, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो। एकदम वो खदशों में घिर गई थी। महविश हंसी। फिक्र क्यों करती हो, हम हैं ना। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हो तो तुम मुझसे छोटी, मगर रिश्ते में जेठानी बनोगी। वो छेड़ रही थी और वो सुर्ख पड़ गई। ताई अम्मी ने तुमसे पूछने की जिम्मेदारी मुझ पर लगाई है, मगर उन्हें क्या पता, उनकी चहेती ही तो शहबाज साहिब के इश्क में पोर पोर डूब चुकी है। उनकी उस छेड़छाड़ पर वो ब्लश हो गई। चची प्लीज़, उसने टोका। वो खिलखिला कर हंसी। रिश्ते में तुम्हारी देवरानी बनूंगी, अभी से सोच लो। चची कहोगी या
ईशा की भी हंसी निकल गई। आप मेरी चची हैं बस, और शहबाज साहब चचा। वैसे बाय द वे चचा से वो कैसे बन गए? वो कितनी बेबाक हो रही थी। महवश चची प्लीज। उसका शर्म से बुरा हाल था। रात शहबाज घर लेट आए थे, तकरीबन सब सो चुके थे। अम्मी उनसे बात करने की नीयत से जाग रही थी। खाना उन्होंने कमरे में ही खाया था। खाने के बाद अम्मी ने वो बात छेड़ दी जिसके लिए वो अब तक जाग रही थी, और फिर उन्होंने ईशा का नाम लिया तो शहबाज हैदर गूंग रह गए। क्या ईशा? वो हैरत ज़दा थे। वरीशा के बाद जिस तरह उसने फौजान को पाला है, मानो तो उसने दिल जीत लिया है। आपा लोग बाहर उसका रिश्ता देख रहे हैं। फौजान जिस तरह उसके साथ बहल गया है, दिल डरता है कि पता नहीं उसके बाद वो संभल पाए कि नहीं। फिर तुम्हारी तरफ से भी दिल दुखता है। तुम फौजान को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहते, मगर ईशा के लिए तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इतनी सुलझी हुई बच्ची है वो। यूं कहूँ कि मेरे दिल की मुराद भर आई है। वो खुश थी, बहुत खुश। वो बरहम हुए। आप होश में तो हैं ईशा? माय गॉड, जिसे मैं आज तक छोटी बच्ची समझता आ रहा था, आप उसकी बात कर रही हैं। सच सच बताएं कि ये किसकी साजिश है? गुस्से से जो जी में आया कह दिया। है ये साजिश की खूब कही तुमने। दिल में ख्याल था, आपा और भाई साहिब से बात की। उन्होंने वाजिद और ईशा की रजामंदी लेकर हाँ कह दी। अब तुमसे पूछ रही हूँ और तुम मुझे होश का सुना रहे हो। शहबाज हैदर के अंदाज पर वो भी बरहम हो गई। यानी कि मुझसे पूछे बगैर बड़ों तक बात पहुंच चुकी है। या अल्लाह, वो बेचारगी से माँ को देखते रह गए। मना कर दे, मुझे नहीं करनी ईशा से शादी। शहबाज हैदर ने फौरन मना कर दिया। अरे क्यों मना कर दूं? ईशा जैसी लड़की चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली। घर की बात है, तकरीबन सब तय है। भाई साहिब ने हाँ कह दी है। अब मैं शादी की डेट तय करने में देर नहीं लगाऊंगी। शहबाज के एकदम इनकार ने उन्हें परेशान कर दिया तो उन्होंने भी दो टोक बात की। अम्मी प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही? वो बच्ची सी है, फिर मेरी और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। माँ के दो टोक अंदाज पर वो कुछ धीमे हुए, ताहम बेचारगी नुमाया थी। कोई बच्ची बच्ची नहीं है, पूरे 23 साल की हो चुकी है। रही उम्र की बात तो मियाँ बीवी में उम्र का ये फर्क आम है, सब चलता है। उन्होंने ये एतराज़ फौरन रद्द किया। वो गैर शादीशुदा है, मुझ शादीशुदा के साथ कैसे एडजस्ट करेगी? फिर मुझे भी वो बतौर लाइफ पार्टनर पसंद नहीं। बेचारगी से दूसरा एतराज़ किया। उसकी राय ले चुके हैं, उसे कोई एतराज़ नहीं। फौजान को वो पहले ही संभाल रही है। रह गई पसंद की बात तो शादी के बाद वो खुद ब खुद पसंद करने लगेगी। उधर से जवाब तैयार था। वो बहुत इमेच्योर है, उसके लिए उसी के जैसा लड़का चाहिए था। कलसकर फिर कहा था, खैर से शादी के बाद तुम्हारे अदातो इतवार देखकर खुद ही संजीदा हो जाएगी। वो तो जैसे पूरी तैयारी करके आई थी, किसी एतराज़ को चंदा अहमियत ना दी थी। उन्होंने लब भेंच लिए। कोई और भी एतराज़ है तो वो भी कर लो, मैं इनकार नहीं सुनने वाली। शहबाज हैदर ने इंतहाई गुस्से से उन्हें देखा। आज वो उन्हें ज़रा भी मोहब्बत जताने वाली माँ ना लगी। आप भला कौन सा मेरे किसी एतराज़ को खातर में ला रही हैं जो मैं मज़ीद बहस करूं? शिकायती अंदाज में माँ को देखा। वो हंस दी। जब तुम एतराज़ ही ऊट पटांग करोगे तो मैं भला क्या खातर में लाऊं? खैर से अपने घर की बच्ची है, फिर ऐब से पाक, और तुम लगे कीड़े निकालने। उन्होंने गहरा सांस लिया। फिर मैं तुम्हारे ताया जान को हाँ कह दूं? बर्तनों की ट्रे उठाकर वो उठ खड़ी हुई। माँ के डिप्लोमेसी अंदाज पर वो कोफ्त का शिकार हुए। मुझे नहीं पता, मगर एक बात तय है, मुझे उसे शादी नहीं करनी। अंदर का उबाल एकदम उमड़ आया। अम्मी ने गुस्से से बेटे को देखा। शहबाज, वालिदैन के दिल से इस तरह नहीं खेलते। वरीशा का गम अब इतना भी ताज़ा नहीं कि तुम हमें नामुराद लुटाओ। इतने साल बहुत थे, अब तो मेरा ख्याल है कि एतराज़ की गुंजाइश ही नहीं है। ईशा और वरीशा में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। खाला मर जाए तो भांजी, फूफी की जगह भतीजी। दुनिया में होता आया है, कई मिसालें हैं। तुम दुनिया के अकेले निराले तो नहीं हो। मैं इनकार नहीं सुनने वाली। जाकर भाई साहब को हाँ कह देती हूँ। वो गुस्से से भुनाकर कमरे से चली गई। शहबाज हैदर ने गुस्से से सरहाना उठाकर दीवार पर दे मारा। जी चाहा अभी जाकर ईशा वाजिद को झंझोड़ कर रख दे, मगर वो जब्त कर गए। रात के उस पहर वो तो सो चुकी होगी, मगर शहबाज हैदर अंगारों पर लौटने लगे। शहबाज हैदर की सारी रात आंखों में कटी थी। एक छोटी सी लड़की ने उन्हें अजियत से दो चार कर रखा था। सुबह नीचे हलचल हुई तो वो भी कमरे से निकल आए।
नीचे आए तो अभी सभी अपने कमरों में थे। वो ईशा के कमरे की तरफ चले आए। दरवाज़ा लॉक नहीं था। हैंडल घुमाने से दरवाज़ा खुलता चला गया। वो अंदर दाखिल हुए तो फौजान बिस्तर पर कंबल में लेटा सो रहा था और वो वॉशरूम से वज़ू करके निकल रही थी। इतनी सुबह सुबह शहबाज हैदर को अपने कमरे में देख कर चौंकी। आप? दुपट्टा वज़ू के स्टाइल में लिपटा हुआ था। तुम? ईशा को देखकर गुजरी रात की अजियत नए सिरे से ताज़ा हो गई। एकदम तैश में कदम बढ़ाए। ईशा शहबाज के तेवर को देखकर पीछे हटी थी। तुम खुद को समझती क्या हो? कहाँ अजाब की तरह मुसलसल मेरे पीछे पड़ गई हो। ईशा का गुदास आस्तीन चढ़ा बाजू उनकी फौलादी गिरफ्त में जकड़ लिया गया था। ईशा उनके तेवर देखकर खौफजदा हो गई। आप क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे प्लीज़। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि तकलीफ से बस चीख निकलने की कसर थी। अपना बाजू छुड़ाना चाहा तो शहबाज ने मजीद तैश में आकर झटका दिया था। वो बुरी तरह दीवार के साथ जा लगी। जान से मार दूंगा तुम्हें, पागल लड़की। तुमने अम्मी और ताई अम्मी तक बात पहुंचा दी, जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सारी तुम्हारी साजिश है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस तरह करने से तुम मुझसे शादी करने में कामयाब हो जाओगी? लानत भेजता हूँ मैं तुम पर। इस कदर गुस्सीले तैश भरे लहजे में दुनिया जहाँ की नफरत थी। हैरान फटी फटी निगाहों से बाजू की सारी तकलीफ भूले पत्थर बन गई थी। इतनी नफरत, इस कदर नापसंदीदगी का इजहार वो बेयकीनी से देखे गई। मेरा ख्याल था कि तुम अक्लमंदी का मुजाहरा करोगी। कल रात जो भी हुआ मैं तुम्हारी नादानी समझकर नज़रअंदाज कर गया, मगर अब तुमने अपनी राह में खुद कांटे बोए हैं। बहुत बुरा करूंगा मैं तुम्हारे साथ। शहबाज के अंदर का लावा किसी भी तरह कम नहीं हो पा रहा था। ईशा का खौफ से बुरा हाल हुआ। शहबाज हैदर का ये रूप पहली दफ़ा देखने में आ रहा था। मैंने क्या कहा है? वो रो दी। कुछ बाजू की तकलीफ और कुछ शहबाज का खौफ। आंसू एक एक करके चेहरे पर गिरने लगे। कुछ लम्हे पहले उसने वजू किया था। चेहरा गीला था। थोड़ी से गर्दन तक सारे चेहरे पर पानी के कतरे चमक रहे थे। सुर्खो सफ़ेद चेहरा, जा बजा चिमटी काले बालों की लटे। एक लम्हे को उसके रो देने पर उसकी गहरी आंखों में मौजूद पानी देखकर साकित हुआ था, मगर अगले ही लम्हे ये नमी उनके अंदर की आग को भड़का गई थी। अभी बेहयाई में कोई कसर बाकी है? माय गॉड, जो बात मैं सोचते हुए भी लर्ज जाता था, वो बात तुमने कितनी आसानी से बड़ों तक पहुंचाई। ना सिर्फ पहुंचाई बल्कि मेरी किसी मर्जी को खातिर में लाए बगैर सब कुछ तय भी पा गया। सिर्फ एक दिन में, एक लम्हे की कैफियत थी। अगले ही लम्हे अंदरूनी खलफशार ने फिर गज़बनाकी की रिदा उड़ा दी। प्लीज़ चुप करें, मैंने किसी से बात नहीं की। कसम ले लें, आप मुझे बेहयाई के ताने मत दें। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि आपसे मोहब्बत करने की गुनहगार हूँ। मेरे जुर्म को मेरी सज़ा तो मत बनाएं। वो फूट फूट कर रो दी। कितना रुला रहा था ये शख्स उसे, और उस शख्स को अपने रवैये का एहसास न था। शहबाज हैदर ने भेंचे हुए चेहरे से उसके बाजू से अपना हाथ हटा लिया। तो फिर बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि अम्मी मेरी राय को अहमियत दिए बगैर तुमसे शादी का फैसला सुना गई? गुस्सा किसी तरह भी कम नहीं हो पा रहा था। मुझे क्या पता, अपनी अम्मी से जाकर पूछे। मैंने अगर उनसे ही बात करना होती तो इतना अरसा आपका ये रवैया बर्दाश्त ना करती। वो हाथों में चेहरा छुपाकर शिद्दत से रो दी। उसकी हर हिचकी पर शहबाज हैदर उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरे गया। तुम कोई भी ड्रामेबाजी कर लो, जो मर्जी कर लो, मैं मुतासिर होने वाला नहीं हूँ। निबट लूँगा तुमसे अच्छी तरह। शहबाज हैदर ने उसे अच्छी तरह धमकियों से डरा धमकाकर बाहर गिरा ली। तो ईशा ने चेहरे से हाथ उठाकर हिलते दरवाजे को देखा। आंसू एक दफ़ा फिर उसके रुखसारों पर बह निकले। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड बर वक्त आप तक पहुँचे। और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।